Should we start? Time laptop. We will start. So what we did till last lecture? Okay. Online friends, is my voice audible? ऑनलाइन फ्रेंड्स वॉइस ऑडिबल है क्या? Yes, yes. कैमरा दिख नहीं रहा है ना लेकिन मेरा Yes, sir. No. पेन इज नॉट विजिबल. वायर का कुछ प्रॉब्लम है शायद से. कैमरा नहीं चालत है. Have some recap of last lecture. क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर तक? What we completed? We started with basics, right? We started with basics of cost accounting, cost accountancy, right? We started with material costing. Material costing, we solved some problems. कनेक्ट नहीं हो रहा है. पासवर्ड माहिती आहे कोणाला याचा? वायफायचा पासवर्ड द्या ना. इथे कनेक्ट करायला लागतील मोबाईल लॅपटॉपला. पाठवा. Friends, just 2 minutes. किसका है? लाओ ना इधर. हाँ 1 का है ना. ये आ गए. हाँ 0 है क्या?
डेफिनेटली टी छोटा हाँ कैपिटल टी नॉर्मल नहीं करना स्मॉल हाँ टी लिखिए फिर से जीरो वही के जीरो है जीरो जीरो छोटा हाथ @100 101 है ना 100 100 वाला तो मैडम से कैसे अलग है चेंज किया हम्म चेंज किया तो हम्म हाँ। हाँ मॅडम नाही तो घेत हा पाठवला तुम्ही तो पासवर्ड पण तो कनेक्ट नाही होत आहे हां हां पुढे हां वो झिरोच आहे का पुढे पण ठीक आहे ठीक आहे करतो रे कॅप्स लॉक करूनच करतो ठीक है ना नहीं हुआ तो अभी मेरा मोबाइल कर लगाऊंगा क्या हुआ दे इधर हम्म ठीक है ना कैप्स लॉक एम ओके जीरो कैप्स कैप्स में एन शिफ्ट आई कैप्स लॉक बंद करके टी फिर से जीरो आर @ नहीं हुआ तो मेरा मोबाइल का लगाता हूँ अभी
Friends, is this screen visible now? No, Screen visible है क्या online friends? no, no. नहीं हो रहा है? No. देखिए तो अभी It is visible. it is visible na now? Okay. So let's start. Last time we solved some problems, right? We had solved some problems. Now today we will start with, we have just spend 5 minutes extra on this, not an issue. So we'll start with LIFO FIFO method, stores ledger accounts. ठीक है? LIFO FIFO weighted average and simple average मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमको. क्या पेज नंबर क्या है वो सिंपल एवरेज वाला? जस्ट टेल मी पेज नंबर. 89 ना? 87, sir. ठीक है. So today we'll solve with this first illustration number 1 इसमें these all problems were solved. So illustration number 5, right? Prepare a statement showing the pricing of issue on the basis of simple average and weighted average method. So दोनों मेथड से हमको सॉल्व करना है. ठीक है. So in the books of, चलो let's start. In the books of company, stores ledger account. Online friends, if you face any problem, please escalate, huh? Whether screen is not visible or camera is not visible, please let me know, huh? सर ये स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है. यस शायद सर, तो फिर अमाउंट भी नहीं दिख रही है वैसे तो. अगर ये स्क्रीनशॉट शायद लेना setting- होगा तो अभी सेटिंग कुछ इनेबल है शायद. अभी- सेटिंग शायद ओपन है कुछ. सर वो ओबीएस की स्क्रीन है. यहाँ पे तो इतना सेटिंग पूरा क्लियर है. नहीं आई. ये है. So as per this, it is okay. अभी तो नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है. बराबर. OBS कैमरा भी ऑन है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. So prepare a statement showing pricing of issues on the basis of simple average and weighted average method from the following information pertaining to material D. So this material which is being inverted for production purpose and issued to the production, its valuation has to be done. So what happens in a factory? Material is received in factory and then it is issued to production. So when it is received, it is recorded, and when it is issued, at that time also the material is being recorded.
for in the books which is known as stores ledger account, which is known as stores ledger. So in the books of company, stores ledger आवाज एकदम मत कर account, stores ledger accounts. So date, particulars, receipt. In receipt, we will have to prepare 3 column: quantity, rate, and amount. Then issue. Again in issue column, there will be 3 elements: quantity, rate, and amount. And last will be balance, which will be quantity, rate, and amount. So our stores ledger account will look like this: date, particular, receipt, okay. ठीक है. Now what method we are using? Method that we will have to write over here. We are first solving by simple average rate method. Simple average rate method. So this element you might have studied in your foundation. ये टॉपिक फाउंडेशन में स्टडी किया रहेगा या ग्रेजुएशन में भी, अगर यू पीपल हैड कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट, सो यू माइट हैव स्टडीड देयर टू, करेक्ट. सो ये दोनों एरिया में कहीं ना कहीं आपने इसका स्टडी किया रहेगा. अगर नहीं भी किया है, इफ यू हैव नॉट स्टडी, लेट्स अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे एंड मूव अहेड. डोंट एक्सपेक्ट टू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया, लेकिन 2, 4, 5 मार्क्स के लिए जितना भी कुछ आएगा, शुड नॉट मिस अ सिंगल मार्क्स फ्रॉम दिस एस्पेक्ट. तो हम लोग 2, 4 मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अभी, जो भी कर रहे हैं. 2 to 4, नॉट मोर देन दैट. 2 to 5 मैक्स. तो इकोनॉमिक ऑर्डर किया था, मैक्सिमम मिनिमम स्टोर्स लेजर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, then inventory valuation, inventory turnover ratio, and now we are into stores ledger accounts. So ये जितने भी टॉपिक्स है, ये जो भी हम लोग स्मॉल एलिमेंट कवर अप कर रहे हैं, दिस एलिमेंट विल मार्क्स फॉर दिस एलिमेंट विल रेंज फ्रॉम 2 to 5, 2 to 6 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं आएगा. लेकिन 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के भी लिए आए तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑन दैट. सो डेट बाय डेट वी विल go on recording on first. So first of all, we should not make any mistake on, there has to be at the time of starting the problem. So कौन से महीने के लिए है? मार्च. So first March. So always start with opening balance. Even if it is given, not given, we have to record it there. कुछ दिया है opening balance? Nothing. No opening balance, but still we have to write opening balance. Keep it blank. Not an issue. Keep it blank. But what happens, many times you start solving without considering opening balance, and you solve the problem. Later on, at the end of the problem, you find there is something which is known as opening balance. So opening balance अगर consider नहीं किया तो पूरा problem, whatever way you have solved it, it will not give a correct answer. ठीक है. Now again on 1st March, what has happened? On 1st March, we have to write purchase. Purchase बोला है ना उन्होंने, कितना purchase किया है? Purchase 100 quantity at the rate rupees 10 each. So 100 quantity has been purchased at the rate rupees 10. Amount is 100 into 10. 100 into 10. Online friends, my voice is audible. Please in between, if you find any difficulty, please escalate. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी. स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्या करने का है? ये दिख रहा है दिख लेकिन रहा है, बहुत छोटा दिख हाँ? रहा है. It is visible. दिख रहा है ना? ये नीचे का जो कंट्रोल है ना सर, ऑडियो मिक्सचर वगैरह, वो मिनिमाइज किया तो बड़ा दिखेगा. कहाँ पे? नीचे हमें है ना, वो आपका जो सोर्स और ऑडियो मिक्सचर कंट्रोल्स दिख रहे हैं सगळ्यात ना, खाली सर मिनिमाइजचा ऑप्शन आहे. यहाँ पे? हाँ
हे जर मिनिमाइज केले ना सर हे तिन्ही स्क्रीन तर आम्हाला मोठी दिसेल ती स्क्रीन. तर आता गायबच झाली स्क्रीन. ऍक्च्युली त्यांना नाही दिसत येते, फक्त आपल्याला दिसतंय. अजून नाही का? नाही अजून पण नाही दिसत आहे. स्क्रीन छोटी दिसते सर. आता कोणतं बटन काय करावं लागेल मला नाही माहिती. हॅलो. हा ऍक्च्युली जर तुम्ही स्क्रीन रोटेट केलात आणि त्याला स्क्रीन वाईज ऍडजस्ट जर केलात तर स्क्रीन मोठी होईल. मी सध्या तसंच केलेलं आहे आणि इट्स क्लिअरली विजिबल. सर इट्स नॉट फॉर यू. एक्चुअली जो ऑनलाइन फ्रेंड्स है मैं उनके साथ शेयर करेंगे कि अगर अच्छा, स्क्रीन आप- रोटेट करेंगे आप और फुल स्क्रीन के साथ करेंगे तो विजिबल हो जाएगा प्रॉपर. तो आपके लेवल पे प्रॉब्लम है क्या वो? आई डोंट नो द इशू बट अभी एडजस्ट करना पड़ेगा. Actually, sir, नाउ एटलीस्ट नीचे वैसे नीचे वैसे है ना करके हम देखो लोगों को हमने देख लिया है लेकिन बाकी लोगों को दिख रहा है छोटा. इतकं क्लिअर नाही दिसत आहे सर. थोडं पुसत पुसत तर दिसतच नाही झूम केलं. पण एवढ्यावरती ऍडजस्ट करू शकतो सर आम्ही. हे तर एकदमच काहीच दिसत नाही हे क्वेश्चन. इट्स ओके सर, कंटिन्यू करा. Okay. Okay, now you have purchased the material which you have recorded into receipt 100 quantity. Rate was 10 rupees. Amount is 1000 rupees, right? So as per this first transaction we added. So in your stores also you will have 100 quantity. Balance rate will be 10 rupees and amount will be 1000 rupees. Okay. So you purchased it and it went into a stores with 100 quantity rate and amount. Now second transaction. Let's take second transaction. What has happened, madam? थांबा. हे नाही हे नाही हे नाही हे नाही. हम्म. आता याच्यात काय करायचं? कॅमेरा तर तोच घेतलाय ना? नाही कोणता होता कॅमेरा? तोच तो कॅमेरा होता. तो तुम्ही बघितलं का ते? हा हा हा. नाही ठीक आहे. तुम्ही कुठं होता? ठीक आहे. Now what second transaction has happened? Purchase 200 units. Date is how much? Date is 2nd March. 2nd March. Again purchase 200 quantity. 200 quantity. Rate is how much? 10.20. 10.2. 10.2. Amount will be 200 into 10.2. So 2040. in balance column, what amount we will have? 100 quantity plus this 200 quantity, which is there will be 300 rate, and amount column, since we are using simple average, this will be 1000 plus 2040, 3040. Don't write rate. Rate नहीं लिखना है यहाँ पे. Don't write rate. ठीक है. Third one. Next, what is the transaction? Issued 250 units. Date 5th March. 5th March. Issue. Now how much it has been issued? 250 units have been issued, right? So in issue column we will write 250 units. Now here
we'll have to do some working. Which method we are following? Simple average rate method. And in simple average rate method, we have to take average of the rates that has been applied. Average. So working note number one. Computation of simple average rate for issue dated 5th March. Computation of simple average rate for issue dated 5th March. So हमारे पास दो rates है. We have 2 lots which we have procured. It was procured for, in stock we are having 300 quantity, right? From this 300 quantity we have to issue 250 quantity. Agreed? So what rate that has to be applied, that's what we are studying over here, and that's what we have to be applying, and that will depend on which method we are following. Now since this is simple average rate method, we'll have to find out simple average rate for this. So we have 2 lots, 2 rates lot, iska simple average karna hai. So 10 simple average is equal to 10 plus 10.2 divided by 2 transaction है 2 rupees. So कितना rate आएगा? 10.10, right? 10.1, yes. 10.10. Now amount will be 250 into 10.10, right? Now what will be the closing balance? Closing balance out of 300 we have issued 250. Out of 300 we have issued 350. So 50 quantity is in balance, and out of 3040 we have issued 2525. So the closing balance as on 5th March will be 50 units. Amount is 515. Got it? Understood? Pakka? Okay. Next, after 5th March. After 5th March we have to apply 7th March. Purchase 200 units. So 7th March. Purchase. Again purchase. Purchase है तो receipt column में आएगा 200 quantity at the rate 10.5. 10.5. So amount will be 200 into 10.5. Now what will be the balance? Balance will be our 50 पहले था मेरे पास. Now I added additional 200. So my closing balance of quantity is 250. Why? Because closing was 50 and newly purchased 200. So 250 quantity is the balance, and amount will be 550, 515 plus 2100. 2100. Got it? Okay. Now next, after 7th March. After 7th March, 10th March purchase 300. 10th March purchase. Again purchase है ना? कितना है? 300 quantity है 10.80. 300 quantity at 10.80. Amount will be 300 into 10.80. Now your closing balance will be how much? 250 was already there, plus I have purchased newly to 300. So 550 will be the quantity, and amount will be 2615 plus 3240. 5855 will be the amount column. Got it? Everybody? Online friends, any query? Online friends? I believe no query. Okay. Next, after 10th March. 13th March issued 200 quantity. 13th March. Issue. कितना issue करना है? 200. So out of 550 quantity, I have to issue 200 quantity. Now what rate has to be applied over here? Rate क्या apply करना है? So working note number 2, computation of simple average rate for issue dated 13th March. For issue dated 13th March. See, now here we will have to apply some logic and understand what rate has to be applied. हमारे पास कितने लॉट है अभी तक? 4 लॉट से प्रोक्योर किया था. ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था. ओपनिंग स्टॉक रहता तो वो भी एक लॉट रहता, राइट? वी हैड 4 लॉट्स परचेसेस. 4 लॉट परचेस, 4
rate, different rate. Out of these 4, we have issued 250 quantity. Means ये lot का material पूरा issue कर चुके हैं. बराबर. So हमारे पास कौन से lot का rate बाकी, quantity बाकी है? ये 3 lot का material हमारे पास अभी भी बाकी है. हाँ या ना? पक्का? See, just थोड़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा अपने को, जाके फाइंड आउट करना है. मेरे पास स्टॉक में कितना मटेरियल है अभी? 550 quantity is in stock. Out of this 550 quantity, I am issuing how much? 200. So balance quantity stock में ये issue करने के बाद कितना रहेगा? 350. Okay. Now this for 200 I have to apply the rate. What rate to be applied? That will depend on the method that we are following. So now this method is simple average rate. Now what do you mean by simple average rate? Rate का simple average find out करना है. ठीक है. अभी मेरे पास रेट कौन से है? देर आर 4 रेट्स विथ मी. 4 लॉट मैंने प्रोक्योर किया था. ओपनिंग स्टॉक रहता तो 5वां भी हो जाता है. ठीक है. उसमें से मैंने 250 ऑलरेडी इशू कर चुका कुछ क्वांटिटी. मींस 250 मतलब ये लॉट तो पूरा खत्म हो चुका है और इस लॉट में से कुछ मटेरियल गया है, बट स्टिल सम क्वांटिटी इज देयर फ्रॉम दिस लॉट. सो माय सिंपल एवरेज रेट विल बी सिंपल एवरेज रेट 10.2 प्लस 10.5 plus 10.8 divided by 3. Correct. So simple it is. So my simple average rate for the issue dated 13th March is 10.5. Done. Now amount will be 200 into 10.5, 2100, and closing balance will be 5855 minus 2100. 3755 is the amount which is remaining. Done. After 13th up to 13th March, any question? I'm telling you again, these are very simple things. We have to go into a difficult area fast. तो इसको जल्दी से absorb करके आगे चलना है. After 13th March, what is the date? 18th March, issued 200 quantity. Again 18th March, issue कितना है? 200 quantity. So we are having how much quantity in stores? 350. मेरे पास 350 quantity stock में है, balance for stock में 350. Out of 350, how much I have to issue? 200 quantity. So out of that, I have to issue 200 quantity. So balance will be how much? 350 minus 200. 150 balance रहेगा. Now for this 200, we have to find out the work computation of simple average rate for issue dated 18th March. For issue dated 18th March. अभी कौन सा रेट अप्लाई करना है 18th मार्च के लिए? कौन सा रेट अप्लाई करना है? मेरे पास अभी 150 क्वांटिटी मटेरियल पड़ा हुआ है. तो 150 क्वांटिटी मटेरियल कौन सा है? एक ही एलिमेंट नहीं, 350 था ना मेरे पास. 350 था. 350 मतलब ये 2 रेट रह गया, ये भी चला गया. बराबर. इश्यू हो चुका होगा ना ये. So I am having only these 2 lots with me. Yes or no? Yes or no? 350 है ना. सिर्फ इसके लिए कोई ऐसा सोचने के लिए जरूरी नहीं. मेरे पास क्वांटिटी कितना है स्टॉक में? 350 इशू करने से पहले. और मैंने परचेसेस कितना किया है? ये इसी में से रहेगा. इसके आगे वाला, पहले वाला तो इशू हो गया होगा. सो माय सिंपल एवरेज रेट विल बी 10.5 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाय 2. दो से डिवाइड करना है. 2 ही रेट है तो 2 से डिवाइड करना है. सो व्हाट विल बी द रेट? 10.65. 65. 10.65 will be the rate. Amount will come 200 into 10.65. 2130. Now 2001. balance will be 1625. 1625. ठीक है? रेट नाही माइनस केले. ओके. नेक्स्ट 18th के बाद क्या है? 20th. बराबर ना? 20th को क्या करना है? 20th मार्च परचेस है क्या? कितना है? 100 क्वांटिटी परचेस किया है. रेट क्या है? 100 क्वांटिटी 11 रुपीज. अमाउंट विल कम टू 100 into 11.
Now your closing stock will be how much? मेरे पास already I was having 150 plus 100, 250 and 1625 plus 1100, 2725, 2725. Correct? Sure? Okay. Next element after 20th March, what is happening? Issued 25th March. Issue. कितना इशू किया है? 150. ठीक है. Now this 150 units इशू किए हैं. So we have to apply the logic. क्या रेट लेना है? So computation number 4th, 5th, working note number 4th, 5th. Computation of simple average rate for issue dated 25th March. 25th March. See अभी logic understand करो. देखो 250 क्वांटिटी है मेरे पास. Yes or no? तो 250 क्वांटिटी ये दो रेट में से ही बन जाता है मेरा. बराबर ना? ये दो लॉट में से बन जा रहा है मेरा. कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं इसका एप्लीकेशन करने के लिए. इसको अप्लाई कैसे करना है? हाउ मच क्वांटिटी आई एम हैविंग इन स्टॉक? 250. तो ये रेट पक्का है, ये 100 वाला. ये लॉट पक्का है एंड ये दूसरा लॉट पक्का है. ये दोनों लॉट में मिलके मेरे पास हो जाता है ना. ये तो 4 से बन रहा है, मेरे तो पास 250. सो आई हैव टू टेक एवरेज ऑफ विच टू एलिमेंट? I have to take average of 10.8 and 11. 10.8 and 11. I believe you people understood ये simple average. So 10.8 plus 11 divided by 2. क्या रेट आ गया? 10.9. So your issue rate is 10.9. So amount will come to 150 into 10.9. Your closing balance will be 250 minus 150 and 2725 minus 160. So हो गया तुम्हारा वैल्यूएशन भी हो गया. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया. दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी. अमाउंट इज हाउ मच? 101. This will become opening stock for next period. Simple था. Simple average rate method. Any question over here? पक्का? Online friends, any query? नो सर. ठीक है. I am going little bit slow. हाँ, अभी भी स्लो है. पिकअप लेने से पहले थोड़ा सा स्लो ही चल रहा हूं मैं. Now we will solve same problem with another method. कौन सा मेथड है अपना? वेटेड एवरेज रेट मेथड. चलो सेम स्टेटमेंट करो. Problem with weighted average rate method. Weighted average rate method. सेम वर्किंग करना है. सेम स्टेटमेंट बनाना है इनफैक्ट. ओके, शुड वी स्टार्ट? प्रिपेयर कर लिया आप लोगों ने? सो मेथड इज वेटेड एवरेज रेट मेथड. ओपनिंग बैलेंस देयर वाज नथिंग, सो वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस एज 0. सो परचेसेस, हाउ मच परचेसेस? 100 क्वांटिटी at the rate rupees 10. Amount will be 100 into 10, 1000. So your closing balance will be 100 plus rate लिखना है 10, amount is 1000. Done? हो गया? लिख लिए? ओके. शॉर्टकट कुछ नहीं करना है. प्लीज डोंट डू एनी शॉर्टकट. नेक्स्ट सेकेंड को परचेज. 2 मार्च परचेज. कितना परचेज किया? 200 क्वांटिटी. रेट इज हाउ मच? 10.2. अमाउंट विल कम टू 200 into 10.2, 2040. Done?
Now your closing balance will come this 100 plus newly purchased 200, and amount will be this 1000 plus this 2040. Now यहाँ पे जब weighted average rate रहता है, when we are, please say the difference, weighted average rate रहता है तो यहाँ पे rate निकालना है amount divided by quantity. यहीं पे रेट वर्कआउट करके रखना है, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में करके रखना है. अंडरस्टूड. सिंपल एवरेज में हमने ये रेट कॉलम वाज ब्लैंक. सी, रेट कॉलम हमने हमारा पूरा ब्लैंक था, हमने निकाला लिया नहीं. बट इन वेटेड एवरेज व्हाट वी डिड, we derived the rate, weighted average rate निकाला. What is the math formula for weighted average? Total value divided by total quantity. That is rate के simple average में simple rate का simple average करते थे. ठीक है. Next is what? Issue. फिफ्थ को कितना इशू करना है? 250 क्वांटिटी. नाउ यहाँ पे इतना सिंपल रहता है. थिंग्स आर सो सिंपल ओवर हियर. व्हाट इज द रेट ओवर हियर? वेटेड एवरेज रेट. वो रेट अप्लाई करना है. सिंपल. हा रेट वेटेड एवरेज रेट जो डिराइव करून ठेवला होता 3040 डिवाइडेड बाय 300. हा जो रेट आहे that is what our weighted average is. Weighted average rate is 10.13. So amount comes to how much? 250 into 2533. अब थोड़ा राउंडिंग अप हो जाएगा आपका. डू दैट, राउंडिंग अप कर लो, वॉट एवर इट में भी. डबल डिजिट में लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अमाउंट कॉलम को, नहीं तो हम लोग कैलकुलेशन में लॉस हो जाएंगे. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक? 300 माइनस 250 एंड 3040 minus 2533. Now what will be the closing stock? यहाँ पे immediately weighted average rate apply करना है. Rate is how much? 507 divided by 50. $507 divided by 50. इथे करून ठेवू का लक्षात राहण्यासाठी? आणि यहाँ पे 507 डिवाइडेड बाय 50. ठीक है. नेक्स्ट 7th मार्च. व्हाट इज द डेट? परचेज 200 यूनिट्स. 200 परचेज है. रेट क्या है? 10.5. अमाउंट विल बी 200 into 10.5. Now what is your closing stock? Closing stock will be 50 plus 200. 50 plus 200. And amount will be 507 plus 2100. Now what will be the rate? यहाँ पे rate immediately find out करना है. Rate क्या है? 2607 divided by 250. 2607 divided by 250. आपका राउंडिंग अप का थोड़ा सा आएगा इशू, डोंट वरी. ये लैब कंप्यूटर पे तो फास्ट हो जाता है. वैल्यूज राउंड अप करते चलो आप. जो फिगर थोड़ा 19-20 इधर उधर होगा, डोंट वरी फॉर दैट. क्लियर? रेट से आफ्टर दैट 10th मार्च परचेसेस 300 यूनिट्स. 300 यूनिट्स परचेस किया. अमाउंट कितना है? 10.8. 10.8. टोटल विल बी 300 into 10.8. 3240. 3240. Done? Done over here. Now what will be the closing stock? 250 plus 300 and 2607 plus 3240. Now what will be the closing stock? Closing stock will be 58 rate of closing stock, weighted average rate 5847 divided by 550, 10.63. Understood? 10.63 कैसे निकाला? 5847 divided by 550. Okay. After that 13th March issue 200 quantity. 200 quantity. वेटेड एवरेज में ये इसीलिए सिंपल बहुत लगता है क्योंकि इशू को रेट क्या लेना है? लास्ट वाला 10.63. ये वेटेड एवरेज रेट इसीलिए फाइंड आउट करते हैं कि वो सीधा एप्लीकेशन करना है. एंड अमाउंट विल बी 200 into 10.63.
Now what will be your closing stock? Closing stock 500, 550 minus 200 and amount 5847 minus 2126. So your closing rate will be 3721 divided by 350, 10.63. Okay. Next 18th March issue. कितना इशू करना है? अगेन 200 क्वांटिटी इशू करना है. रेट वी नो, लास्ट रेट इज 10.63. अप्लाई करना है, अमाउंट डिराइव करना है 200 into 10.63. So what will be your closing stock? 350 minus 200 and 3721 minus 2126. So your rate will be 1595 divided by 150, 10.63. Done. 18th March. Next 18th March के बाद 20th March purchase 100 units. So 20th March purchase 100 units. Rate is how much? 11. So amount will be 100 into 11. Your closing stock will be 150 plus 100 and 1595 plus 1100. So now closing stock will be 2695 divided by 250, 10.78. Weighted average rate find out करके रख लिए. Done? पक्का? Sure? And last is issue. कितना issue? 150. 150 क्वांटिटी को इशू कर दिया. रेट इज वेरी सिंपल, क्या? 10.78. अमाउंट विल कम टू 150 into 10.78. So your closing balance will be 250 minus 150 and 2695 minus 1670 and rate will be 1078 divided by 100, 1078. Any question over here? 4 marks, 5 marks, 6 marks, whatever marks के लिए आ जाए. Any question? पक्का? अभी ये जो स्टोर्स लेजर अकाउंट है, सारे बैलेंस प्रॉब्लम होमवर्क के लिए देने वाला हूं मैं आपको. We don't want to spend much time on these topics. We have many big problems to solve. इसमें ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होता रहेगा. प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि इमीडिएट सब मैं आपको होमवर्क दे दूंगा. बट नाउ समथिंग देयर विल बी फॉर होमवर्क फ्रॉम दिस एरिया. मिड ऑफ मार्च तक अपने को बेसिक कंप्लीट करना है, मतलब मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीनों तक कंप्लीट हो जाना चाहिए मिड ऑफ मार्च. अभी महीना है अपने पास, लेकिन टॉपिक भी काफी कुछ कवर अप करना है. सो ये जो सिंपल चीज है, दिस आर सिंपल थिंग, रियली वेरी सिंपल थिंग. उसमें से कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको, यू विल हैव टू डू दैट. ठीक है, और वो होमवर्क में कुछ क्वेरीज आ गए तो प्लीज कम बैक, वी विल सॉल्व इट ओवर हियर. से अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज. यहाँ पे देखो क्वांटिटी कितना था, 100 क्वांटिटी, रेट अमाउंट वाज 1090 एंड बाय दिस मेथड 100 क्वांटिटी अमाउंट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज 1078. सो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, बट वैल्यूएशन में चेंज आ गया. वैल्यू ऑफ स्टॉक declared under weighted average rate method is 1078 rupees and under simple average rate method it is 1090 rupees. It hardly makes any difference. Hardly means if you are consistently following one method, जो method follow करते हैं, don't change the method. नहीं तो ये पहले महीने में या पहले साल simple average से अच्छा benefit मिल रहा है, simple average. So next period I will go by weighted average. क्यों मुझे beneficial था? ऐसा नहीं चलेगा. Account में we have to follow the consistency. Now consistency, whatever method you are following, follow that method consistently. Valuation इधर उधर थोड़ा होता रहेगा मेथड से. अंडरस्टूड? एंड प्रैक्टिकली अगर मुझे पूछोगे तो कौन सा मेथड यूज होता होगा अभी? मोस्टली वेटेड एवरेज. मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो द वेटेड एवरेज सिस्टम ओनली. जो सिस्टम ड्राइवन है, ऑर्गेनाइजेशन विच आर मेयरली सिस्टम ड्राइवर, मेजरली वेटेड एवरेज मेथड ही फॉलो करते हैं. बट कई ऐसे भी है जहाँ पे लिफो फिफो भी है, तो उस वक्त हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमने ऑप्शन में डाला था, बराबर ना? तो सिलेबस ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए.
सो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए चलते हैं हम लोग. ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन ओवर हियर? ऑनलाइन फ्रेंड्स, किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ ना, No, कुछ sir. तो बोलो. No question up to then. No. ठीक है, चलो. Then we will go to illustration number 6. The stock of material held on 1/4/22 was 400 units at the rate rupees 50 per unit. The following receipts and issues were recorded. You are required to prepare stores ledger account showing how the value of issues would be calculated under base stock method, both through FIFO and LIFO, base being 100 unit. ठीक है. सो हम लोग ये प्रॉब्लम में चार मेथड कंप्लीट करने वाले हैं. दिस प्रॉब्लम विल हैव 4 मेथड्स. ठीक है, बेस स्टॉक विथ लिफो एंड बेस स्टॉक विथ फिफो. सो चारों मेथड एक ही प्रॉब्लम में अंडरस्टैंड हो जाएंगे. ठीक है, सो रीड द क्वेश्चन वंस, विल स्टार्ट सॉल्यूशन. चलो, स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है, गप्पे नहीं मारना है. See, if we miss some 10-15 minutes because starting of the lecture, we will extend it later on. 8:30 के बाद कंटिन्यू करेंगे. उतना जितना ही टाइम हम लोग अगर इनिशियली स्टार्टिंग में लग रहा है कुछ, ठीक है, बट नाउ मच ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व. ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है. एज पर मी 95% सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली नाउ. 5% है तो चला जाएगा वो थोड़ी दिन में, और 1-2-4 लेक्चर में निकल जाएगा वो इशू. सो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा आप लोगों को. लेक्चर भी अच्छा हो रहा है, बट इफ वी मिस 10-15 मिनट्स इनिशियली बाय बिकॉज ऑफ दिस, आई विल कंटिन्यू दैट आफ्टर 8:30. किसी को बस का प्रॉब्लम है, ट्रेन का प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा, अदरवाइज विल कंटिन्यू दैट. ठीक है, okay. Now which method we have to follow? Method LIFO with या FIFO करते. चलो पहले FIFO करते. FIFO with base stock. FIFO with base stock method. Base stock मतलब what do you mean by base stock? Base stock का क्या मतलब होता है? एक बार वो अंडरस्टैंड, LIFO FIFO तो अंडरस्टैंड होना ही है, base stock भी अंडरस्टैंड होना ही है. But first we should know what is base stock. Base stock means what? Initial stock. Further, कोई इंडस्ट्री का एग्जांपल देके. ओके, नाउ शुगर इंडस्ट्री, किसी को आइडिया है? एनी आइडिया ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज? ओपनिंग हाउ, नहीं ओपनिंग स्टॉक नहीं, हाउ दे वर्क. आज मैं अगर गया शुगर इंडस्ट्री में, आज मैं बटन ऑन किया, सीजनल है वो, अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाता है. मैंने बटन चालू किया शुगर इंडस्ट्री में. हाँ, शुगर इंडस्ट्री का आज मैंने गया, फैक्ट्री में गया, बटन चालू कर दिया. जैसे बटन चालू करेंगे उधर शुगर आएगा क्या? नहीं आएगा. बराबर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम शुगर को क्रश करेंगे, शुगर केन को क्रश करेंगे, फ्यूल वो टैंक रहेगा, जूस टैंक रहेगा, उसको भरना पड़ेगा, एंड देन उसका मिनिमम उतना बेस रहेगा. जब तक 4-5 महीने चलता रहेगा उतना बेस स्टॉक उसके पास रहेगा ही रहेगा. यस, यू कैन नॉट मेक इट जीरो. जीरो कब होगा? जब फैक्ट्री बंद हो जाएगा, तब तो जितना भी बचा कुछ सब स्टोर्स में से जीरो कर देंगे. सो बेस स्टॉक मीन्स व्हाट? मिनिमम उतना मुझे मेंटेन करना ही पड़ेगा. I have no other option, but that base stock will be there lying. सिस्टम में स्टॉक, प्रोडक्शन में उतना स्टॉक पड़ा रहेगा. अंडरस्टूड ना? केमिकल इंडस्ट्री में जाओ, केमिकल का प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं. जैसे मैंने बटन दबाया फैक्ट्री का कि केमिकल आना शुरू हो जाता है कि नहीं, इट विल हैव सम देयर लिक्विड, सम स्टॉक लेवल करेगा, फिर उसके बाद काम शुरू करेगा, फिर नल भरने के बाद बाहर गिरना शुरू हो जाएगा. तो जब तक वो टैप का लेवल तक भरता नहीं, बेस स्टॉक है ना? यस और नो? चलो और एक एग्जांपल देता है, अपना घरगुती एग्जांपल.
मीन्स व्हाट? हम घर पे हम लोग वाटर टैंक लेते हैं, यस और नो? उसका टैप रहता है, वो लेवल के थोड़ा सा ऊपर रहता है, हम लोग वो उसको बर्तन को टेढ़ा कर देते हैं. दैट इज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट. सो बेस स्टॉक उतना बेस है, और जैसे उस स्टॉक के नीचे, उसके नीचे जाएगा, पानी आएगा क्या बाहर टैप से? नहीं आएगा. सो उतना बेस स्टॉक तो उनको मेंटेन करना ही है. अंडरस्टूड? So in this case, what they are saying, 100 quantity as a base stock. 100 quantity as a base stock. चलो, so opening stock कितना है फिर अभी हमारे पास? See, opening stock is 400 units at the rate rupees 50 per. अगर मेरे पास base stock है, so मेरे पास I will first opening stock में क्या लिखूंगा? 100 units at the rate rupees 50. अरे हा, तेच सांगतोय मी तुला. मग बेस स्टॉक काय सांगत आला आतापर्यंत? हा, 5000 रुपीज आणि 300 क्वांटिटी ऍट द रेट रुपीज 50. अमाउंट इज 300 इंटू 50. सो योर बेस स्टॉक, स्टॉक को मैंने ओपनिंग स्टॉक को ही टुकड़े कर दिए. 100 क्वांटिटी इज ए बेस स्टॉक. 400 में से 100 बेस है, वो हिलेगा नहीं. जैसे तुमचे वो वाटर टैंक है, बेस स्टॉक मैंने 100 क्वांटिटी बोल दिया, अभी उसको तुम निकाल नहीं सकते. यू कैन नॉट रिमूव दैट, इट विल ऑलवेज बी देयर एज ए स्टॉक. फैक्ट्री पूरा बंद हो जाएगा तब मैं वो पूरा टैप को उल्टा कर दूंगा, निकाल लूंगा, वो भी निकाल लूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी. एंड ऑफ द डे बेस स्टॉक को भी जरूर हो जाएगा ना. शुगर इंडस्ट्री जब क्लोज होता है, शुगर फैक्ट्री जब क्लोज हो जाता है, अक्टूबर में चालू होता है, मार्च अप्रैल में बंद हो जाता है. जब बंद हो जाता है सो सारे जूस टैंक एम्प्टी कर देते हैं ना वो लोग, करते हैं, तो बेस स्टॉक भी जीरो हो जाता है. फिर बेस स्टॉक भी निकाल लेते हैं, उसका भी कन्वर्ट कर देते फिर. बट जब तक चलता है तब तक बेस स्टॉक रहेगा. दैट इज द बेस स्टॉक ओवर हियर. सो ओपनिंग स्टॉक को ही मैंने टुकड़ों में बांट दिया. वन इज बेस स्टॉक, सेकंड वन इज नॉर्मल स्टॉक. ओके, अंडरस्टूड? ये इसको अगर नहीं करोगे तो पूरा प्रॉब्लम गलत जाएगा. बेस स्टॉक मेथड है. बेस स्टॉक मेथड नहीं रहता तो फिर मैं पूरा स्ट्रेट वे 450 5000 कितना 20,000 अमाउंट लिख के मैटर क्लोज हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट? 4th अप्रैल. सो सॉरी, ये अप्रैल महीना है क्या? 1st अप्रैल. 1st अप्रैल. उसके बाद कौन सा है? 2nd अप्रैल परचेसेस. परचेसेस कितना परचेस किया? 100 क्वांटिटी एट द रेट रुपीज 55. सो 100 क्वांटिटी एट द रेट रुपीज 55 एंड अमाउंट इज हाउ मच? 100 into 55. नाउ सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज वाज वेरी इजी. जितने ट्रांजैक्शन उतने लाइन आइटम थे. बट व्हेन वी आर कमिंग इनटू LIFO मेथड एंड FIFO मेथड, वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल. व्हाट डू मीन बाय, हमारा मेथड कौन सा है अभी? FIFO. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहला स्टोर में आएगा उसको पहले इश्यू कर दूंगा मैं. ठीक है, सीक्वेंसिंग होना चाहिए ना कुछ तो भी. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आया उसको पहले निकाल देने का. ठीक है, सो नाउ दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वॉट एवर इट मे बी. हमको जो ये क्लोजिंग जो स्टॉक था पहले उसको एज इट इज नीचे लेके आना है, एज इट इज. 2nd अप्रैल को हमने देखो 100 क्वांटिटी था 55,000, 300 क्वांटिटी था 15,000, एंड नाउ न्यूली रिसीव्ड दिस 100 क्वांटिटी एट द रेट रुपीज 55. अमाउंट इज 5,500. सी, ये मेरा उस दिन का स्टॉक है, उस दिन का स्टॉक है. अंडरस्टूड? सो ऑन माय 2nd अप्रैल ये मगजमारी करना पड़ेगा. ये स्टॉक को फिर से नीचे लिख के आना है एज इट इज. उसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना. सीक्वेंस चेंज करोगे तो गए काम से. 39 मार्क्स. एंजॉय. सो डोंट चेंज द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द स्टॉक ऑल्सो. सो हमने कैसे लिखा था? 100 300 100 300 50 50 5,000 15,000. नाउ न्यूली रिसीव्ड इज हाउ मच? 100 55 5,500. क्लियर? पक्का? ओके.
Now next date is what? 6th April, issue 400. 6th April, issue कितना इशू करना है? 400. हम लोग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. नाउ फर्स्ट इन कौन सा है मेरे पास? 100. लेकिन ये बेस स्टॉक है, इसको टच नहीं करना है. 400 ओपनिंग स्टॉक. अरे मैं वही बोल रहा हूँ, 100 बेस स्टॉक है, उसको हाथ नहीं लगाना है. डोंट टच इट. 300. हाँ, 300. तो मेरे पास पहले, फिर नेक्स्ट इज हाउ मच? 300. सो 300. पहले ये 300 को इशू करूंगा. रेट 300 का रेट क्या है? 50. अमाउंट इज हाउ मच? 300 इंटू 50. अभी देने थे मुझे 400, कितने दिए? 300. अभी भी 100 देना है. सो मेरे पास नेक्स्ट लॉट कौन सा है? 100 वाला. 100. सो 100 वाला लॉट उठा लूंगा. ये 100 वाला लिया है. रेट इज 55 and amount will be 100 into 55. So now how much stock I am having? I am having only this element as a stock. ये बेस स्टॉक है, जितना ही मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक बराबर ना. ये 300 और 100 इशू कर दिए. 300 और 100 अमाउंट इज दिस. एंड नाउ ओनली बेस स्टॉक जितना क्वांटिटी है उतना क्वांटिटी मेरे पास पड़ा हुआ है. क्लियर? पक्का? उसको वो स्टॉक बाहर निकल ही नहीं सकता ना, इसलिए तो उसको बेस बोला है. शुगर इंडस्ट्री में पहले जब चालू किया तूने, भर गए ना वो टंकी, नल तक भर गए. वो कभी निकलेगा नहीं जब तक वो टंकी को उल्टा नहीं करेगा. तो वो 100 एज इट इज रहने वाली, इसलिए तो उसको नाम है बेस स्टॉक. दिस 100 विल कंटिन्यू टिल एंड. जब फैक्ट्री बंद हो जाएगा फिर ये 100 को भी उल्टा करके निकाल के शुगर में कन्वर्ट कर देने का. गॉट इट? ओके. Next is what date? 10th April, purchase 600. 10th April, purchase 600 quantity. Rate क्या है? 55. Amount 600 into 55. Now stock लिखते समय कैसे लिखने का? Previous stock as it is में नीचे लेके आऊंगा, बराबर. Previous stock as it is नीचे लेके आऊंगा. And this newly received 600 quantity at the rate rupees 55, 33,000. So on this given date, I am having this stock. So on this intentionally I am giving color code, so that we understand it in a proper way. Okay, understood? पक्का? पक्का? नेक्स्ट कौन सा डेट है? 13th ना? 13th. कितना है इशू? इशू है क्या? इशू कितना? 400. नाउ विच मेथड वी आर फॉलोइंग? FIFO. ये हमारे पास दो लॉट है. 100 को तो टच नहीं करने वाले, तो ये 600 में से कितना इशू करना है? 400 क्वांटिटी. रेट कौन सा लगाना है? 55. अमाउंट विल बी 400 into 55, 20. नाउ स्टॉक कैसा है? ये 100 एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये 600 में से कितना इशू कर दिया? 400. अमाउंट रेट 55, अमाउंट विल बी 200 into. So on this date I am having a closing stock of how much? ये दो लॉट है मेरे पास क्लोजिंग. इसको लॉट बोला जाता है. 100 का एक लॉट है, 200 का एक लॉट है. इसका रेट 50 है, इसका 55. अमाउंट इज 16,000. क्लियर? पक्का? अगर बेस स्टॉक ना रहता तो 100 भी मैं बाइफिकेट करता ही नहीं. ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो चला जाता. ठीक है. आफ्टर 13th April, 20th April परचेस. 20th April परचेस कितना है? परचेस कितना किया है? 500 at 65, बराबर ना? 500 at 65. Amount will be 500 into 65. Now what will be your closing stock? ये as it is दो लिख के जो closing stock था as it is नीचे लेके आ गया. And newly added is how much?
500, 65, 32, 500. So on 20th April, I am having this 3 lot as my closing stock. 3 lot as my closing stock. So मेरे पास 3 lot है closing stock में 100 quantity, 200 quantity, 500 quantity, 5,000, 11,000, 32,500. Done? Pakka? Okay. Now after 20th April, 25th April issued 600 quantity. 25th ना? 25th April कितना है quantity? क्या है? Purchase है ना? Purchase है ना? Issue है क्या? कितना? 600 quantity. ठीक है. तो हमारा मेथड कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. बट बेस स्टॉक इसको टच नहीं करना है. सो पहले मैं ये क्वांटिटी को इशू कर दूंगा, बराबर. यस सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 200 मेरे पास पहले आए थे, मैं इसको इशू करूंगा. अब और कितने करना है? 400. 400. सो आई एम हैविंग दिस 500 का लॉट, उसमें से 400 Yes. इशू कर दूंगा. वो इसका रेट क्या है? 65. स्टॉक अमाउंट विल बी 400 into 60. 26,000. नाउ व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक? ये 100 एज इट इज रहेगा, बराबर. 200 इशू हो चुके हैं और 500 में से 100. 400 गए, 100 रुपीज. सो क्वांटिटी 65 रेट, अमाउंट विल बी 100 into 65. Understood? Yes sir. So on this given date, I am having a stock of 200 quantity, 2 लॉट है 100 के, एक का रेट 50, एक का 65, अमाउंट इज 5,000, 6,500. Any question? Any question? ठीक. Next, after 25th April, 10th May purchases. 10th May purchase है ना? हाँ, परचेस कितना है 10th May को? परचेस 800 at the rate 70. 800 at the rate 70, amount will be 800 into 70. Now closing stock कैसे लिखेंगे? How we will write closing stock? ये दो लॉट है closing stock के, as it is नीचे लेके आ गए, and newly purchased lot will be added to this. So on this particular date, I am having 3 lots of stock with me. 3 lots of stock with me. 100, 100, 800, 50, 65 and 70 are the तीनों lot का rate है. Amount 5,000, 6,500 and 56,000. Done? पक्का? Sure? Yes sir. Okay. Now after 10th May, what comes? Issue. 12th May issue 500. 12th Yeah. May issue. 100. कितना इशू करना है? 500. बट मेरे पास स्टॉक में कितना है? पहले ये तो बेस स्टॉक को हाथ नहीं लगाऊंगा. मेरे पास नेक्स्ट लॉट इज हाउ मच? 100 वाला. 100. 100 यहां से मैं इशू कर दूंगा. और कितने करने हैं मुझे? 400. और 400 करूंगा. कौन से लॉट से? ये 800 के लॉट में से 400 करूंगा. रेट विल 70, अमाउंट विल कम 400 into 70. नाउ व्हाट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक? ये बेस स्टॉक एज इट इज नीचे आ जाएगा. 100. बेस स्टॉक नीचे लाना भूलना नहीं है, नहीं तो गए काम से. ठीक है. ये 100 क्वांटिटी पूरा इशू हो चुका है. यस और नो? ये लॉट पूरा खत्म हो चुका है और ये 800 में से 400 इशू करते हैं. सो 800 माइनस दिस 400, 400, रेट इज 70, अमाउंट इज हाउ मच? 400 into 70, 28,000. सो ऑन दिस डे आई एम हैविंग 2 ही लॉट मेरे हाथ में है जिसका रेट है 100 क्वांटिटी 100, 400 एंड अमाउंट इज 50, 70. अमाउंट इज 50, 70. डन? पक्का? आफ्टर 12th May. 13th May issue 200. 13th May issue कितना है? 12th है 13th है? 13th में. 13th में कितना है? इशू 200. सो 200 इशू करना है मेरे पास. एक ही लॉट है, बराबर ना? 400 में से इशू कर दूंगा 200. रेट इज 70,
अमाउंट इज हाउ मच 200 इंटू 70. क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? ये 100 एज इट इज आ जाएगा नीचे, एंड ये 400 में से 200 गया, 200 रह गए, 70 रेट, अमाउंट इज 14,000 रुपीज. सो ऑन दिस डेट आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ, दो लॉट है मेरे पास 100 और 200 क्वांटिटी के, रेट इज 50 एंड 70, अमाउंट इज 5,000 एंड 14,000. क्लियर? पक्का? श्योर? ओके. आफ्टर 13th में, आफ्टर 13th में क्या है? 15th में परचेसेस, 15th में परचेस कितना? 500 क्वांटिटी है क्या? रेट 75, अमाउंट विल बी 500 इंटू 75. नाउ क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो पहले मैं ये लॉट लिख के नीचे लेके आता हूं, एंड देन न्यूली एडेड लॉट उसके नीचे ऐड कर देता हूं. ये लेबर जॉब है, हाँ, ये लेबरस वर्क है, लेकिन 5, 6, 7, 8 मार्क्स के लिए आ गया तो फिर चांदी है. लेबरस वर्क है, वही अमाउंट क्वांटिटी. मुझे तो कोई कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन आपको तो लिखना है. गॉट इट? पक्का? ओके. आफ्टर 15th May, 12th June, issued 400 quantity. 12th June issued कितना है? कितना? 400. बट मेरे पास स्टॉक में पहले लॉट में कितना? ये 100 को टच नहीं कर रहा हूं मैं. आई एम नॉट टचिंग दिस. सो पहले 200 ये इशू कर दूंगा मैं. ओके. और अभी कितना और इशू करना है? 200. ये लॉट सेकेंड लॉट में से, ये लॉट में से इशू करूंगा. 500 में से 200 जा सकते हैं. रेट इज 75, अमाउंट इज 200 इंटू 75. नाउ क्लोजिंग स्टॉक, दिस 100 एज इट इज. ये 200 खत्म हो चुके हैं, और 500 में से कितने गए? 200. तो कितने रह गए? 300. 300, रेट इज 75, अमाउंट इज 300 इंटू 75. डन? पक्का? आफ्टर 12 जून क्या है? 15th है क्या? 15th जून परचेस है कितना? 300 units. 300 रेट 80 रुपीज. अमाउंट इज 300 इंटू 80. 24,000. नाउ क्लोजिंग स्टॉक, ये दो लॉट एज इट इज नीचे लेके आऊंगा, and newly added stock I will write over here. Okay. So what is your closing stock? आपके बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा अमाउंट, क्वांटिटी इज 700 क्वांटिटी, अमाउंट इज 51,500 with the rate of 50, 75 and 80. Clear? पक्का? Yes, sir. Sure? Done? Online friends, any query? No, sir. यहाँ पे ओनली बेस स्टॉक की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. बेस स्टॉक नहीं रहता तो फिर तो फटाफट हो जाता है. ठीक है, अंडरस्टूड? सो अगर बेस स्टॉक नहीं रहता, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बेस स्टॉक नहीं रहता तो क्या करते हैं हम लोग? यहीं पे स्टॉक लिखते समय कितना लिखते? 450 एंड अमाउंट वुड हैव बीन दिस. ओके. नाउ इशू परचेस कर दिया तो ये ऐसा स्टॉक लिखते हैं हम लोग. न्यू परचेस आ गए. अभी इशू करना है, कितना इशू करना था हमको? 400. ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पहले लॉट में 400 था, तो कितना? यही एक ही लाइन आइटम में 400 इशू कर देता. अमाउंट 50, अमाउंट बैलेंस. अब बैलेंस कितना लिखता मैं? खत्म. 100, 55, 100, 55 एंड 5,500. खत्म. बेस स्टॉक है, नहीं रहता तो. अंडरस्टूड ना? ठीक. चलो, नाउ वी विल बी सॉल्विंग बेस स्टॉक विथ LIFO मेथड ना.
चलो फॉर्मेट बनाओ। स्टोर्स ले मेथड कौन सा है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट क्लासरूम में आएगा वो पहला बाहर जाएगा, वही है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिफो जो क्लासरूम में पहला आएगा वो पहला बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, चलो शुड वी स्टार्ट? बना लिया? और मैं आई एक्सपेक्ट यू पीपल आर राइटिंग इन योर बुक्स एज इफ इट इज योर पेपर। एग्जाम हॉल में बैठे हो इस हिसाब से कर रहे हो। वो कुछ तो भी ऐसे पेंसिल से खींच लिया, कुछ तो भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, डोंट डू दैट। जैसा आप प्रैक्टिस करोगे वैसा ही एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, जो आप लोगों ने जिन्होंने एग्जाम दिया आपको पता भी चल गया, आप जो प्रैक्टिस करते हो वैसा ही एग्जामिनेशन हॉल में करते हो। सो प्रैक्टिस करते समय ही ऐसा प्रैक्टिस करो कि यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल। चलो शुड वी स्टार्ट? सो ओपनिंग स्टॉक लिख लिया मैंने, बेस स्टॉक मेथड। 100 क्वांटिटी 50 बेस स्टॉक है तो लिखना तो पड़ेगा एज इट इज। सो अभी हैव रिटन बेस स्टॉक एंड स्टॉक। चलो नेक्स्ट, परचेस किया, कितना क्वांटिटी परचेस किया? 100 यूनिट्स 55 रेट, 100 यूनिट्स at the rate rupees 55, amount will be 100 into 55. now closing stock लिखते समय फिर से वही स्टोरी है, एज इट इज लिखे आओ। ओपनिंग वो पहले स्टॉक लेके आओ, देन ये नया 2 लॉट, ये लॉट ऐड करो उसमें। सर इन्स्टिट्यूटच्या नेटवर्कला इश्यू आहे का? सॉरी, नेटवर्क इश्यू आहे का इन्स्टिट्यूटला? काय झालं रे बाबा? दिसत नाही व्यवस्थित सर. नाही रे, व्यवस्थित चालू आहे इन्स्टिट्यूटचं लेक्चर्स। क्या हो गया यार? लॉक हो गया, ठीक है। ओके, सो वी हैव रिटर्न एज इट इज स्टॉक 100 क्वांटिटी। इश्यू तुमच्याच लेवलला असेल, कारण इन्स्टिट्यूटचं व्यवस्थित आहे, इथे रेंज तर चांगली आहे। बाकीच्यांना पण प्रॉब्लेम येतोय का? हो सर, मला पण दिसत नाही. माझं स्पीड 50 Mbps आहे. काय झालं? 50 Mbps स्पीड दाखवतोय मला. नाही मग आता काय करायचं त्याला? ये तो इंस्टीट्यूट का ही कनेक्टिविटी है। others are facing problem? येस सर. येस येस सर, मला पण पुसत पुसत दिसत. ब्लर आहे सर. ओह,
काय करायचं आता याला? कनेक्टिव्हिटी तर इन्स्टिट्यूटचीच आहे. चलो नेक्स्ट 6 अप्रैल इशू कितना करना है? 400 क्वांटिटी. सो हाउ मच स्टॉक वी आर हैविंग? बेस स्टॉक को टेस्ट नहीं करना है, लीफो मेथड है पहले, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो लास्ट कौन सा था? 100 क्वांटिटी 100. आए थे. सो वील इशू फर्स्ट 100 क्वांटिटी. रेट इज 55, अमाउंट इज 55 into 100. Now what will be the closing stock? नहीं सॉरी, और इशू करने हैं ना 300. ये 300 लॉट भी इशू कर देंगे. We'll issue this 300 also over here. So all 400 quantity is issued. Amount. Now what will be the closing stock? Closing stock is 100. only your base stock. Closing stock is only the base stock. Done? Yes or no? Yes, sir. Next. Next is what? 10th ना? 10th में क्या है? Purchase. 10th में purchase किया 600 quantity. Amount? Rate क्या है 600 का? 55. 55,000. 55. Amount is how much? 600 into 55. 3,300. Now what will be the closing stock? Closing stock ये base stock as it is नीचे लेके आना है. And this newly element को add करना है यहाँ पे. So this is what the closing stock is on this particular date. Okay? Done? Now on 13th क्या है? इशू है कितना? 400. LIFO मेथड है. स्टॉक भी हमारे पास, ये 600 में से इशू कर देंगे हम लोग. 400. रेट इज हाउ मच? 55. अमाउंट विल बी 400 into 55. नाउ क्लोजिंग स्टॉक विल बी हाउ मच? ये बेस स्टॉक एज इट इज आएगा नीचे. एंड 600 में से कितना गया? 400. 400. 200. अमाउंट इज 55. Rate is 55. Amount will be 200 into 55. तो इसको मैं अलग कलर कोडिंग कर रहा हूं. ओके, डन. After that, 20th April, purchase 500 units. Purchase किया 500 units. Amount, rate is 65 ना? 65. 65. Amount will be 500 into 65. Now what will be your closing stock? ये दो तो as it is आ जाएंगे आपके. And newly added lot will be 500, 65 and 32. So we will be having these 3 lots as a stock on that particular date. ठीक है. Next, clear? On 25th April issue है कितना? 600 क्वांटिटी. नाउ लिफो मेथड कर रहे हैं हम लोग. लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट लॉट कौन सा है? ये 500. इसको पहले इशू कर देंगे हम लोग. अभी और कितने करने हैं? 100 क्वांटिटी. सो ये लॉट में से जाएगा. ये 500 जीरो हो चुके हैं. 100 में से जाएगा दूसरा 100. सो दिस विल बी 100. Rate is 55. Amount will be 5500. Now what will be the closing stock? ये base stock as it is नीचे आएगा. And इस 200 में से 100 जा चुका है. 100. Rate is 55. Amount is
100 into 55. So on this particular date, we are having these two lots with value different rates. Got it? पक्का? Okay. Next. 10th May. 10th May को क्या परचेस 800 क्वांटिटी. 10th में 800 क्वांटिटी रेट क्या है? 70. 70. Stock will be 800 into 70. क्लोजिंग स्टॉक कैसे लिखेंगे? ये दो लॉट एज इट इज नीचे लेके आएंगे कॉपी करके, एंड नया लॉट ऐड हो जाएगा 170 and 56,000. ठीक है. आफ्टर दैट 12th May को क्या इशू है? 500 क्वांटिटी. सो लिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग, यस और नो? लिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं. 500 क्वांटिटी इसमें से 800 में से चला जाएगा. वी कैन इशू 500 क्वांटिटी फ्रॉम दिस 800. ये लॉट में लास्ट लॉट आया था, 500 क्वांटिटी इशू करेंगे. रेट उसका 70 है. अमाउंट विल कम हाउ मच? दिस इनटू 700. अब मेरे पास स्टॉक कितना रहेगा? ये दो लॉट एज इट इज आएगा, इसको मैंने टच नहीं किया. 100. और ये 800 में से 300 गए, कितने रह गए? 300. 800 में से 500 गए, 300 बराबर लिखा था. रेट इज 70. अमाउंट विल कम हाउ मच? 300 into 70. Okay, so these are the elements or got it. Now on 13th May. 13th May क्या है? इशू 200 क्वांटिटी इशू किया है फिर से 200. यहां से दे सकते हैं लास्ट लॉट में से 300 क्वांटिटी मेरे पास पड़ा है, उसमें से कितना देना है? 200 क्वांटिटी देना है मुझे. रेट इज 70. Amount will come how much? 200 into 70. Now how much stock I will have? How much stock I will have? 100. ये दो लॉट एज इट इज आएगा, उसको मैंने टच नहीं किया था. और ये 300 में से 200 गए, कितना रह गया? 100. रेट इज 70. ये लॉट का रेट इज 70. अमाउंट इज 100 into 70. So closing stock मेरे पास 3 लॉट है. तीन लॉट है. 100 के 3 लॉट है. 50, 55 और 70 अमाउंट है उसका. Got it? Next 15th May. परचेस 500 क्वांटिटी. परचेस कितना किया? 500 क्वांटिटी. रेट कितना है? Amount 500 into 75. Now what will be the closing stock? ये ऊपर वाले लॉट एज इट इज में नीचे लेके आऊंगा, बराबर. And newly lot which got added over here. न्यूली लॉट विच गॉट एडेड ओवर हियर. सो मेरे पास अभी 4 लॉट है, बराबर ना? ऑन दिस डेट आई एम हैविंग 4 लॉट्स ऑफ क्वांटिटी विथ मी. आफ्टर दैट 12th June इशू करना है. कौन कितना क्वांटिटी इशू करना है? 400. नाउ लिफो मेथड है, सो मैं इसमें से इशू कर सकता हूँ 400. सो आई एम इशूइंग 400 क्वांटिटी. रेट इज 75.
amount is 400 into 75. So closing stock लिखना है मुझे. So closing stock कितना रहेगा? ये 100 में ये तीनों लॉट एज इट इज आएंगे, बराबर, इनको टच नहीं किया. और ये 500 में से 400 गए, फिर से 100 क्वांटिटी है, रेट इज 75 and value is 7,500. So on this date I am having a closing stock of 400 quantity with 4 lot with a different rate of 50, 55, 70 and 75. Done. So on last date, purchase कितना purchase किया? 300 quantity, amount rate 80. Rate will be how much? 300 into 80, 24,000. Closing stock कैसे लिखेंगे? ये as it is आ जाएगा मेरा 4 lot, and newly added lot will get below to it this. So on this particular date I am having these 4 lots or 5 lots of quantity in my stock. Amount is 49,000 with a different lot 100, 100, 100 and 300. Rate is 50, 55, 70, 75 and 80. ठीक है? Any question? पक्का? Sure? Sure? देखो मेथड का क्वांटिटी, ये तीनों क्वांटिटी 700 है, यहाँ पे भी 700 ही क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितना है? 49,000 एंड लिफो मेथड में अपना कितना था? 51,500. वैल्यूएशन बदलेगा, क्वांटिटी तो सेम रहेगा बट वैल्यूएशन विल चेंज. सो उसको हर महीने हर वक्त बदलना नहीं है, जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली फॉलो करना है. ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेरी ओवर हियर? किसी को कुछ क्वेरी अब तक? नो सर. चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है? तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो इतना आसान है. सो लेट्स गो फॉर होमवर्क. इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7 इज फॉर होमवर्क. FIFO मेथड है, सिंपल है, कर पाओगे? इसमें कौन से एलिमेंट का इश्यू आएगा? रिटर्न में. जो रिटर्न में देखो, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 15 यूनिट्स, जो पहले इशू किया रहेगा लेटेस्ट इशू, उसका रेट अप्लाई करना है यहाँ पे. रिटर्न मतलब फिर से स्टॉक में आ रहा है ना, स्टोर्स में आ रहा है. देखो व्हाट हैज हैपेंड, फॉर एग्जांपल यू परचेस, यू माइट हैव परचेस, ये यही मेथड यही रहते हैं. हमने ये परचेस किए, ये इशू कर दिए. अभी कोई तो भी एक एलिमेंट है यहाँ पे रिटर्न कर दिया, यहाँ पे रिटर्न टू स्टोर्स, रिटर्न टू स्टोर्स कितना है? मानो 50 क्वांटिटी रिटर्न कर दिया. अभी ये रिसिप्ट में आ जाएगा. रेट क्या लेना है? लेटेस्ट रेट, जो इशू लेटेस्ट क्वांटिटी जो इशू किया था उसका रेट लेना है, खत्म, एंड स्टोर्स में आ जाएगा. अगर हमको रेफरेंस दिया है कि कौन से डेट में इशू किया था वो मटेरियल, तो वो रेट लेना है. स्पेसिफिक दिया है तो. स्पेसिफिक अगर नहीं है, इफ देयर इज नो स्पेसिफिक, देन लेटेस्ट इशू किया रहेगा, उसी में से मटेरियल रिटर्न आया होगा. रिटर्न के लिए रेट नहीं रहता है ना, बराबर ना? स्टोर्स में रिटर्न आया या डिपार्टमेंट को, कभी कभी ऐसा होता है वेंडर को भी रिटर्न कर दिया, मैंने जहां से परचेस किया था उसी को रिटर्न कर दिया, तो मैं इशू में आ जाएगा. फिर इशूड एंड रिटर्न बैक टू द, मेरे स्टोर से चला गया. अंडरस्टूड? रिटर्न टू स्टोर्स एंड रिटर्न फ्रॉम स्टोर्स, ये अलग अलग दो कॉन्सेप्ट है कि नहीं?
रिटर्न टू स्टोर्स मतलब मैंने पहले प्रोडक्शन को इशू किया, बट प्रोडक्शन को नहीं चाहिए था, इसलिए प्रोडक्शन ने फिर से दे दिया, तो हमारे स्टोर्स में स्टॉक बढ़ गया। अंडरस्टूड? यस और नो? बट रिटर्न टू वेंडर, वेंडर के पास भेज दिया रिटर्न, सो इट इज इक्वल टू इशू, वेंडर को अपने स्टॉक में से निकाल देना है। सो कब परचेस किया था उसमें से, वो रेट में से हम लोग इशू कर देंगे उसको। यस और नो? नहीं लक्षात आलं? नहीं ना? रिटर्न दो तरीके के रिटर्न रहता है। एक रिटर्न टू स्टोर्स, रिटर्न टू स्टोर्स मीन्स व्हाट? फिर से स्टोर्स में आ गया मटेरियल, प्रोडक्शन को इशू किया था, फिर से स्टोर्स में आ गया तो रिसीट करके लेना है। नाउ रिटर्न टू वेंडर, मेरे स्टोर्स में आया था पहले ही, कभी तो भी 2 दिन पहले देखा क्वालिटी का इशू है, आई टू इशू रिटर्न टू वेंडर, तो मैं इशू कर दूंगा, रिटर्न टू वेंडर इशू में डाल दूंगा, और जो रिसिप्ट का रेट डेट अगर दिया रहेगा, कौन से रेट रिसिप्ट में है ना, उस रिसिप्ट से इशू टू वेंडर मेरे स्टोर्स अकाउंट्स में से निकाल देने हैं उसको। अंडरस्टूड? इट इज इक्वल टू इशूइंग टू प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट कर पाओगे? हाँ, डिपार्टमेंट एंड स्टोर से की ना, एक मतलब डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज डिफरेंट एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट इज डिफरेंट। इश्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड रिटर्न टू स्टोर्स डिपार्टमेंट, मतलब स्टोर्स में आ गया फिर से। टू एंड फ्रॉम, हम अकाउंट्स के लोग हैं, वी आर वेरी क्लियर, इश्यू टू एंड इश्यू फ्रॉम। यस और नो? अकाउंटिंग एंट्री करते ना, जर्नल एंट्री, स्टोर नहीं, जर्नल एंट्री इश्यू टू, आप लोग ऐसे करते जैसे अकाउंट्स का कुछ कभी देखा ही नहीं। कर पाओगे होमवर्क इसको? पक्का? Yeah, we can do this. Yes. नहीं किया, आज ही करना है, कल होमवर्क के लिए कुछ नहीं देना है, कल मैं चेक करूंगा आपके बुक्स। सर उसमें रेट क्या लेना है? रेट रिटर्न हुआ तो डिपार्टमेंट से रेट क्या लेना है? बिफोर मेथड में फर्स्ट वाला रेट लेना है क्या? इलिस्ट्रेशन नंबर 7 क्या? हाँ, हाँ चलो सॉल्व करते, लेट्स सॉल्व सॉल्व नहीं करना है सर, जस्ट सॉल्व कर देते, खत्म कर देते ना, लेट्स सॉल्व इट। स्टोर्स लेजर अकाउंट, Sir, can we go to next or replacement? I think these are on the same basis, LIFO or FIFO method. Can we go to the replacement one? So next problem है। अभी किसी को रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक लिख पाओगे? इशू लिख कर पाओगे? मेथड कौन सा है? फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इशू कर पाओगे? इशू कर पाओगे? रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर मतलब परचेस है, यस और नो? 200 रिटर्न थांबा आता जरा 2 मिनट। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए से रिटर्न आ गया है, मतलब स्टोर्स में बढ़ गए, रिसीव करके लेना है, रिसीट करके लेना है, रिसीव्ड मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, कितना? 15 टन। अभी इसमें रेट नहीं दिया है, रहेगा भी नहीं रेट, सो कौन सा रेट लेना है? लास्ट इश्यू रेट कौन सा था? 80 टन में, 80 टन में से हम लोग 15 टन फिर से आ गए हमारे पास। ओके, यस और नो? Yes, yes. रिसीट करके ले लेना है, सेपरेट लॉट बन जाएगा अपना, इट विल बी ए सेपरेट लॉट, ठीक है। देन इश्यूड कर लोगे, रिसीव्ड फ्रॉम परचेज सप्लायर, अगेन परचेस आएगा, इशू 300 क्वांटिटी, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर परचेस से फिर से ये इशू आ गया डिपार्टमेंट बी को। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, अगेन दिस इज रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। अभी ये देखो इशू कर दिया था डिपार्टमेंट बी को, इसी में से 35 फिर से आ गया, इट विल बी ट्रीटेड एज रिसिप्ट, रिसीव्ड फ्रॉम, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, रिसीट कॉलम में 35 क्वांटिटी लेना है, और इस पे जो रेट आया था वो रेट अप्लाई करना है उसका। Clear? एंड लास्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, अगेन परचेस में। एनी क्वेश्चन नाउ? पक्का? No. कल होमवर्क करोगे? सिर्फ ये सब
इतना सिंपल है, इतना Yes, इसको sir. लेना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल आई एम टेकिंग। ये लेने का मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के प्रॉब्लम्स भी नहीं है। दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स। दोज पीपल हु हैव अटेंडेड ग्रुप 2 ऑफ कॉस्टिंग, दे माइट बी सेइंग यार ये क्या चल रहा है, बराबर ना? बट या दिस इज द बेसिक दैट वी हैव टू गो। नाउ दिस इज व्हाट इलस्ट्रेशन नंबर 8 LIFO मेथड है। LIFO मेथड है, यस और नो? ओके, ओपनिंग बैलेंस लिख पाओगे? रिसीव्ड Yes, sir. मतलब रिसीट, रिसीव्ड, रिसीट, इश्यूड, इश्यूड, अगेन रिसीव्ड, इश्यूड, रिसीव्ड, खत्म। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। कर पाओगे? होमवर्क, ऑनलाइन फ्रेंड्स? यस सर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. इलस्ट्रेशन नंबर 9 कौन सा है? स्टोर्स लेजर अकाउंट showing pricing of material by replacement price basis the following particular. Now this is different method. Now replacement price, ये मेथड अलग है। ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो भी अलग, बहुत खतरनाक मेथड आ गया। कुछ खतरनाक मेथड नहीं, उन्होंने रिप्लेसमेंट, देखो आप ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो, आवाज नहीं आ रहा है यार। Yes, yes, speaking. रिसीव्ड लिख सकते हो। Yes. अभी इश्यू करना है हमको कितना? 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स, इसके लिए रेट चाहिए। यस देखो कितने डेट का इश्यू है? 15 मार्च का। रिप्लेसमेंट प्राइसेस आर एज बिलो, ये प्राइस 15 मार्च के लिए 4 रुपए 20 पैसे से इश्यू करना है, खत्म। रिप्लेसमेंट देखो जितने इश्यूज है, कितने 15 तारीख को इश्यू है, 15 तारीख का रेट दिया हुआ है। उसके बाद कब है? 20 तारीख का इश्यू है, 20 तारीख का इश्यू रेट दिया है। 26 का है, 26 का है, 30 का है, 30 का रेट दिया है, खत्म। Okay. सॉल्व करना है, No, no, सॉल्व करना है, पक्का? no. श्योर? मोहन, यू आर सेइंग समथिंग? No, it is not required for this. नॉट रिक्वायर्ड ना? पक्का? ओके, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक यार, यू पीपल आर सो मच फास्ट, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। देखो किसी एक को भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज से दैट इसको सॉल्व करना है। एनीबॉडी, वन एक हाथ भी ऊपर किया तो भी चलेगा। आई विल सॉल्व इट हियर। Saili, are you saying something or you please go on mute? Saili? Mute. She want to say something. ये चैट बॉक्स क्यों ओपन नहीं करते इंस्टीट्यूट? बोलो, रिक्वेस्ट करो, नहीं तो चैट बॉक्स ओपन होना चाहिए। चैट जब चालू है तो चैट कर सकते हैं ना यहाँ पे। इट हेल्प्स लाइक एनीथिंग। हाँ, करने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? इग्नोर करने का अनवांटेड मैसेज। बट देखो, नाउ साइली वांट टू से समथिंग, शी इज हैविंग सम टेक्निकल इशू, शी वुड हैव रिटन अ मैसेज ओवर हियर। ओके, कर सकते हो इसको, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को सॉल्व पक्का? ओके, देखो सिंपल है ये इशू का। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, रिसीट कर दिया, इशू देखो 300 क्वांटिटी, रेट ले लिया 4.20, अमाउंट 1260। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे कितना? 500 माइनस 300 200, 2010 माइनस 1260 750, बराबर। आफ्टर दैट फिर से रिसीट ले लिया, इशू करना है अभी कितने तारीख का? 20 तारीख को। कितने? 250, रेट ले लिया 4 रुपीज 40 पैसा, अमाउंट इज 250 इंटू 440 1100। बैलेंस स्टॉक देखो, 400 में से 250 गए 150, एंड 1610 में से 1100 गए 810। डिफिकल्ट है क्या? इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं घर पे ना, प्रैक्टिस करो। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 कितने, क्या है मेथड है? स्टॉक्स आर इश्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन occurred for a specific material. On 1st January, opening stock was 10 units.
at the rate rupees 240. Okay. Now standard rate find out करना पड़ेगा हम लोगों को. We'll have to find out the standard rate. अभी यहाँ पे rate मालूम नहीं है हम लोगों को. Method कौन सा है? Standard rate method है. So we'll have to first find out what is the standard rate. ठीक है. So मेरे पास opening stock कितना है? 10 tons at the rate 240 rupees per ton. Okay. Okay. And फिर purchase की है. क्लोजिंग इशू ऑल दिस थिंग्स हैव डन. ठीक है. और पैराग्राफ चेंज करके एडजस्टमेंट है. द डेबिट बैलेंस फॉर प्राइस वरायंस ऑन 1 जनवरी, मतलब ओपनिंग में डेबिट वरायंस है कितना? 20 रुपया. shows the stock account for the material for the month of January, indicating how you would deal with the difference in material prices when the preparing the product. पहले तो मुझे स्टैंडर्ड रेट फाइंड आउट करना है. सो स्टैंडर्ड रेट फाइंड आउट करते समय मेरे पास देखो 10 क्वांटिटी है. ओपनिंग बैलेंस में कितना है? 10 क्वांटिटी. अमाउंट इज हाउ मच? 2400. मतलब टोटल कितना है? सॉरी 240 पर टन. सो 10 into 240 कितना हो जाता है? 2400 प्लस देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20 रुपीज. सो स्टैंडर्ड रेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सिंपल है, ये भी कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है. मेरे पास कितना 10 क्वांटिटी है, रेट कितना है? 240. अमाउंट इज हाउ मच? 10 into 240, 2400. ओके. सो मुझे स्टैंडर्ड रेट फाइंड आउट करना है. स्टैंडर्ड रेट फाइंड आउट करते समय क्या करूंगा मैं? यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, वेरिएशन. डेबिट बैलेंस कितना है? 20 रुपीज वेरिएशन है ओपनिंग बैलेंस के साथ ही. ओके. सो माय रेट विल बी 2400 प्लस 20, 2420, and this 2420 divided by 10 क्वांटिटी था, तो रेट कितना आएगा? 242. So my all issues will be 242 रेट के हिसाब से. डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? इट इज अ प्राइस. हाँ, मेरा ओपनिंग डेबिट एंड क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल में थोड़ा डिविएशन रहता है ना. स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस रहेगा. सो डेबिट बैलेंस है मतलब मेरे पास अमाउंट इज हायर, तो उसको मैंने स्टॉक में ले लिया, स्टॉक में एडजस्ट कर लिया. क्रेडिट रहता तो मैं माइनस कर देता. क्रेडिट बैलेंस रहता तो आई वुड हैव दिस मेड इट -20 and this would have been my rate 238. Understood? So since it was debit balance, I added it, derived the rate. Now सब purchases कर लिए. इशू करते समय सेम रेट से लेना है, पूरा स्टैंडर्ड एक ही रेट, पूरे इश्यूज के लिए एक ही रेट लेना है. 240 जो बिगनिंग में मैंने वर्कआउट करके रखा था. नहीं समझ में आया? नहीं, किसी को समझ में नहीं आया? Nobody understood this. चलो let's understand now. यही पे virtual, no need to go in Excel and solve all those, do all that activity. आपको घर पे जाके करना है. See what is happening. Stocks are issued at standard price. Standard price means what? Something that is being not actual. मैंने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट एक महीने के लिए मैं 10 रुपए से परचेस करूंगा. ऐसे मेरे लगा कि 10 रुपए. एक्चुअल में क्या हो गया? 10 रुपए 10 पैसे आया, 10 रुपए 20 पैसे से आया, 9 रुपए 80 पैसे से आया. ऐसे मटेरियल आते गए. बट मेरा इशू करना है, मैं स्टैंडर्ड रेट से ही इशू करूंगा. So at the beginning of the period I will derive the standard rate. Standard rate derive करके रखूंगा. Opening stock कितना था मेरे पास? 10 tons at the rate 240. So 10 into 240. Plus there was some debit balance. और standard और actual में जो difference रहता है उसको adjust करना है इधर. Debit है तो add करना है, credit है तो minus करना है. So 2400 plus 20 divided by 10. 10 quantity था मेरे हाथ में. So my स्टैंडर्ड रेट इज फिक्स्ड 242 रुपीज. सो जितने भी मैं इशू करूंगा ये पूरे पीरियड में 242 के हिसाब से इशू करूंगा. बैलेंस विल बी माय स्टॉक. नाउ नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा? आपका रेट क्या रहेगा? अभी ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5 क्वांटिटी 1456, बराबर. सो नेक्स्ट पीरियड के लिए 1456 प्लस 20 क्यों आएगा? वहां पे उन्होंने हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया व्हाट इज द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड में कितना डिफरेंस है, मालूम नहीं है ना. मानो 40 रुपया
वो और डिफरेंस आ गया 40 रुपए, डेबिट बैलेंस ऑफ 40 रुपीज। सो मैं कितना करूंगा 1456 प्लस 10 40, और क्वांटिटी कितना है मेरे पास 5 क्वांटिटी। पर यूनिट कितना आएगा, स्टैंडर्ड रेट फॉर नेक्स्ट पीरियड विल कम हाउ मच 299.20। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? कुछ है डिफिकल्टी इसमें? आवाज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लास्ट क्लियर ना? तू म्हटलं समजलं आहे रे। चल, मेरे दोस्त लोग है ये, मेरे को हमेशा सपोर्ट करते, बताते क्लियर बताते, नहीं समझा तो नहीं समझा। ये थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, सिंपल एवरेज रेट फाइंड आउट करना है। दिस इज ऑल्सो एन होमवर्क। व्हाट इज सिंपल एवरेज, व्हाट इज वेटेड एवरेज, ठीक है होमवर्क करो। यही हमने सॉल्व किया है अभी। वेटेड एवरेज रेट मेथड, सिंपल एवरेज रेट मेथड से सॉल्व करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 ऑलरेडी सॉल्व। से आई एम ऑन ट्रैक नाउ। हाँ, मैं अभी ट्रैक पे आ चुका हूँ, आप भी जल्दी आ जाओ ट्रैक पे फास्ट। थर्ड लेक्चर में आई एम ऑन ट्रैक नाउ, सो यू प्लीज कम ऑन ट्रैक, स्पीड बढ़ने वाला है। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 इज ऑलरेडी सॉल्व। पक्का? इलिस्ट्रेशन नंबर 14 इज ऑल्सो सॉल्व। सॉल्व किया हुआ है, आई नो इट। पक्का? तो इलिस्ट्रेशन नंबर 15 नहीं केले ना, ठीक है। कल यहां से शुरू करेंगे हम लोग। जितना भी हमने आपको होमवर्क दिया है मैं यहाँ पे चेक करूंगा, देन ओनली आई विल मूव अहेड। विदाउट चेकिंग आई विल नॉट मूव अहेड। पक्का? श्योर? ऑनलाइन फ्रेंड्स, हाउ शुड आई चेक योर होमवर्क? प्लीज सजेस्ट। किसी को भी आपत्ति है इतने प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दिया, प्लीज कनेक्ट विथ मी 1-to-1, नॉट एन इश्यू। 1-to-1 आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसको कैसे किया, ये प्रॉब्लम कैसे किया। या टुमारो प्लीज आई विल स्पेंड 5 minutes फॉर सॉल्विंग योर क्वेरीज ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन गिवन फॉर होमवर्क। आप ये प्रोसेस को एग्री कर रहे हो तो ही मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो मैं करता रहूंगा लिफो फिफो, आप खुद परेशान हो जाओगे। ये क्या चल रहा है इधर? इस बार मुझे एनर्जी दिख नहीं रहा है, लेकिन क्यों? आई कुड नॉट फाइंड द एनर्जी। वो मजा नहीं जो लास्ट ग्रुप में था। क्या हुआ है? व्हाट हैज हैपेंड? ये ग्रुप एनर्जेटिक नहीं लग रहा है मेरे को। क्या करना चाहिए एनर्जी लाने के लिए? बाकी टॉपिक शुरू हो गए प्रॉपरली? So are you people studying for 8 hours a day? Those who are students, जो स्टूडेंट्स है वो 8 घंटे डेली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? तो एनर्जी आएगा नहीं। एनर्जी अगर लाना है सो ऑलरेडी अपने सेशन चालू होके काफी दिन हो गए। 8 घंटे पर डे पे सिवा ऑप्शन नहीं है। Those who have given the exams, उनके रिजल्ट्स भी आए होंगे, उसके वजह से भी वो लोग डाउन रहेंगे। पास हुए होंगे तो भी डाउन हो गए, फेल हुए होंगे, फेल तो होता नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट रह गया, ग्रुप रह गया। डोंट एवर से दैट आई हैव फेल्ड। पास नहीं हुए बस, डोंट गेट बॉक्ड, ठीक है। दिस पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ नाउ। ये फील्ड में आना है तो इसके साथ जीना है, नेगेटिविटी में जाना नहीं है। जो नेगेटिविटी ये करता है, लोग नेगेटिव बातें करते हैं, उस फ्रेंड्स को प्लीज 3 साल के लिए फ्रेंडशिप खत्म कर दो। 3 साल के लिए एक्ट लाइज यू आर, 3 साल के लिए यू आर नोवेयर, नो फंक्शन, नो मैरिज, नो
को कहीं पे भी जाना है, स्टडी स्टडी एंड स्टडी। ये मैं लास्ट में बोलता था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इस बार पहले बताना चाहिए। लास्ट में बता के कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइम निकल जाता है तब तक। So those who are really serious about the profession and those who are only students, minimum 8 hours study is required. Please try to understand. At the end of the session, you will realize it. हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। 8 घंटे डेली पढ़ाई करने के बाद भी एंड ऑफ द सेशन you will feel that. And those who are doing job, उनके लिए ये सारे problems जो है easy है, because they know conceptually very well and they know how to effectively study. Those who are students, they need to understand the difference between study and effective study. जो मैं पहले end में जाके बताया, अभी इस बार beginning में बता रहा हूँ। Please try to understand the difference between study and effective study. Only study करके कोई मतलब नहीं है। The study has to be effective study. And those who are students, उनका effective study कम रहता है, इसलिए मैं 8 घंटे बोल रहा हूँ उन लोगों को। If they can study more than 8 hours, 8 hours may not be sufficient for few people. किसी को 6 घंटे में sufficient हो जाता है। So please लाइट, दिमाग का लाइट अभी ऑन कर दो, टाइम गया नहीं है। 4 महीने बाकी है एग्जाम के लिए। अगर ऐसा सोच के अगर आप चलोगे, हम खुद के लिए खड्डा खोद रहे। सो डोंट डू दैट। ओके, चलो। Anybody having any query, please raise it. We will start with illustration number 15. Just remind me, illustration number 15 से शुरू करना है अपने को, ठीक है? और जिन्होंने एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ होगा, प्लीज वेट, टॉक विथ मी। क्लियर हो भी गया, वेट एंड टॉक विथ मी।